जेनेसिस 29 चैप्टर 30 चैप्टर हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करो पवित्र आत्मा, ये वचन हम में भरते जाए और पिता तेरा अभिषेक हमारे अंदर भरपूर होता जाए और हम पिता इस पृथ्वी के ऊपर अभी के समय का सामना करके हम तेरे राज्य को बढ़ाने में हम पिता तैयार रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 29। Jacob coming to the well of Haran meeteth Rachel and is entertained by Laban. He covenanteth for her, but is deceived with Leah. Rachel also given him to his wife on a new agreement. Leah beareth Reuben, Simeon, Levi, and Judah. First verse. Then Jacob went on his journey and came into the land of the people of the east. And he looked, and behold, a well in the field, and lo, there were 3 flocks of sheep lying by it. For out of that well they watered the flocks, and a great stone was upon the well's mouth. And thither were all the flocks gathered, and they rolled the stone from the well's mouth, and watered the sheep, and put the stone again upon the well's mouth in his place. And Jacob said unto them, My brethren, whence be ye? And they said, Of Haran are we. And he said unto them, Know ye Laban the son of Nahor? And they said, We know him. And he said unto them, Is he well? And they said, He is well. And behold, Rachel his daughter cometh with the sheep. And he said, Lo, it is yet high day, neither is it time that the cattle should be gathered together. Water ye the sheep, and go and feed them. And they said, We cannot until all the flocks be gathered together, and till they roll the stone from the well's mouth, then we water the sheep. And while he yet spake with them, Rachel came with her father's sheep, for she kept them. And it came to pass, when Jacob saw Rachel and daughter of Laban his mother's brother, and the sheep of Laban his mother's brother, that Jacob went near and rolled the stone from the well's mouth, and watered the flock of Laban his mother's brother. And Jacob kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept. And Jacob told Rachel that he was her father's brother, and that he was Rebekah's son. And she ran and told her father. And it came to pass, when Laban heard the tidings of Jacob his sister's son, that he ran to meet him, and embraced him, and kissed him, and brought him to his house. And he told Laban all these things. And Laban said to him, Surely thou art my bone and my flesh. And he abode with him the space of a month. And Laban said unto Jacob, Because thou art my brother, shouldest thou therefore serve me for naught? Tell me, what shall thy wages be? And Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel. Leah was tender-eyed, but Rachel was beautiful and well-favored. And Jacob loved Rachel, and said, I will serve thee 7 years for Rachel thy younger daughter. And Laban said, It is better that I give her to thee, than that I should give her to another man. Abide with me. And Jacob served 7 years for Rachel, and they seemed unto him but a few days for the love he had to her. And Jacob said unto Laban, Give me my wife, for my days are fulfilled, that I may go in unto her. And Laban gathered together all the men of the place, and made a feast. And it came to pass in the evening, that he took
he took Leah his daughter and brought her to him, and he went in unto her. And Laban gave unto his daughter Leah Zilpah his maid for an handmaid. And it came to pass that in the morning, behold, it was Leah, and he said to Laban, What is this thou hast done unto me? Did not I serve with thee for Rachel? Wherefore then hast thou beguiled me? And Laban said, It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn. Fulfill her week, and we will give thee this also for the service which thou shalt serve with me yet 7 other years. And Jacob did so, and fulfilled her week, and he gave him Rachel his daughter to wife also. And Laban gave to Rachel his daughter Bilhah his handmaid to be her maid. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more than Leah, and served with him yet 7 other years. And when the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren. And Leah conceived and bare a son, and she called his name Reuben. For she said, Surely the Lord hath looked upon my affliction. Now therefore my husband will love me. And she conceived again, and bare a son, and said, Because the Lord hath heard that I was hated, he hath therefore given me this son also. And she called his name Simeon. And she conceived again, and bare a son, and said, Now this time will my husband be joined unto me, because I have borne him 3 sons. Therefore was his name called Levi. And she conceived again, and bare a son, and she said, Now will I praise the Lord. Therefore she called his name Judah, and left bearing. Chapter 30. Rachel's grief for her barrenness. Bilhah beareth Dan and Naphtali. Zilpah beareth Gad and Asher. Leah beareth Issachar, Zebulun and Dinah. Rachel beareth Joseph, Jacob's new covenant with Laban, his policy to become rich. First verse. And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister, and said unto Jacob, Give me children, or else I die. And Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, Am I in God's stead, who hath withheld from thee the fruit of the womb? And she said, Behold, my maid Bilhah, go in unto her, and she shall bear upon my knees, that I may also have children by her. And she gave him Bilhah, her handmaid, to wife. And Jacob went in unto her. And Bilhah conceived and bare Jacob a son. And Rachel said, God hath judged me, and hath also heard my voice, and hath given me a son. Therefore called she his name Dan. And Bilhah, Rachel's maid, conceived again, and bare Jacob a second son. And Rachel said, With great wrestlings have I wrestled with my sister, and I have prevailed. And she called his name Naphtali. When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid, and gave her Jacob to wife. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a son. And Leah said, A troop cometh, and she called his name Gad. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a second son. And Leah said, Happy am I, for the daughters will call me blessed. And she called his name Asher. And Reuben went in the days of wheat harvest, and found mandrakes in the field, and brought them unto his mother Leah. Then Rachel said to Leah, Give me, I pray thee, if thy sons mandrakes. And she said unto her, Is it a small matter that thou hast taken my husband, and wouldest thou take away my son's mandrakes also? And Rachel said, Therefore he shall lie with thee tonight for thy son's mandrakes.
And Jacob came out of the field of the evening, and Leah went out to meet him and said, Thou must come in unto me, for surely I have hired thee with my son's mandrakes. And he lay with her that night. And God hearkened unto Leah, and she conceived and bare Jacob the fifth son. And Leah said, God hath given me my hire, because I have given my maiden to my husband. And she called his name Issachar. And Leah conceived again, and bare Jacob the sixth son. And Leah said, God hath endued me with a good dowry. Now will my husband dwell with me, because I have borne him six sons. And she called his name Zebulun. And afterwards she bare a daughter, and called her name Dinah. And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and opened her womb. And she conceived and bare a son, and said, God hath taken away my reproach. And she called his name Joseph, and said, the Lord shall add to me another son. And it came to pass, when Rachel had borne Joseph, and that Jacob said unto Laban, Send me away, that I may go unto mine own place, and to my country. Give me my wives and my children, for whom I have served thee, and let me go, for thou knowest my service which I have done thee. And Laban said unto him, I pray thee, if I have found favor in thine eyes, tarry, for I have learned by experience that the Lord hath blessed me for thy sake. And he said, Appoint me thy wages, and I will give it. And he said unto him, Thou knowest how I have served thee, and how thy cattle was with me, for it was little which thou hadst before I came, and it is now increased unto a multitude. And the Lord hath blessed thee since my coming. And now when shall I provide for mine own house also? And he said, What shall I give thee? And Jacob said, Thou shalt not give me anything. If thou wilt do this thing for me, I will again feed and keep thy flock. I will pass through all thy flock today, removing from thence all the speckled and spotted cattle, and all the brown cattle among the sheep, and the spotted and speckled among the goats, and of such shall be my hire. So shall my righteousness answer for me in time to come, when it shall come for my hire before thy face, every one that is not speckled and spotted among the gates, and goats, and brown among the sheep, that shall be counted stolen with me. And Laban said, Behold, I would it might be according to thy word. And he removed that day the he goats that were ring streaked and spotted, and all the she goats that were speckled and spotted, and every one that had some white in it, and all the brown among the sheep, and gave them into the hand of his sons. And he set 3 days' journey betwixt himself and Jacob fed the rest of Laban's flocks. And Jacob took him rods of green poplar, and of the hazel and chestnut tree, and peeled white streaks in them, and made the white appear which was in the rods. And he set the rods which he had peeled before the flocks in the gutters, in the watering troughs, when the flocks came to drink, that they should conceive when they came to drink. And the flocks conceived before the rods, and brought forth cattle ring streaked, speckled, and spotted. And Jacob did separate the lambs, and set the faces of the flocks toward the ring streaked, and all the brown in the flock of Laban. And he put his own flocks by themselves, and put them not unto Laban's cattle. And it came to pass, when
whatsoever the stronger cattle did conceive, that Jacob laid the rods before the eyes of the cattle in the gutters, that they might conceive among the rods. But when the cattle were feeble, he put them not in. So the feebler were Laban's, and the stronger Jacob's. And the man increased exceedingly, and had much cattle, and maid servants, and men servants, and camels, and asses. उत्पत्ति 29 अध्याय और 30 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में DSI बाइबल में से। उत्पत्ति 29 अध्याय 30 अध्याय। याकूब की लाबान से भेंट हम पढ़ेंगे हिंदी में। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों कर रख देते थे। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान को भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृत्तांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीना भर उसके साथ रहा। राहेल और लिया के लिए सेवा। 15 वचन से आगे। तब लाबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कहे मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं? लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, इसलिए मेरे पास रहे। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के समय
उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले आया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया है? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या राहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया है? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। याकूब की संतान 31 वचन से आगे। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। 30 अध्याय पहले वचन से। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। राहेल ने कहा, अच्छा, मेरी दासी बिल्हा हाजिर है, उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी और उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। तब उसने उसे अपनी दासी बिल्हा को दिया कि वह उसकी पत्नी हो और याकूब उसके पास गया और बिल्हा गर्भवती हुई और याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया और मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई और याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्लयुद्ध किया और अब जीत गई। अतः उसने उसका नाम नप्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से राहेल रहित हो गई हूँ, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया और लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। और फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक पुत्र और उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूँ, निश्चित स्त्रियां मुझे धन्य कहेगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूदाफल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूदाफलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूदाफल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा,
तेरे पुत्र के दूधाफलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। सांझ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई, और याकूब से उसके पांचवा पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। इसलिए उसने उसका नाम इसक्कार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसका 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जुबूलून रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। याकूब और लाबान के बीच विवाद। 25 वचन से आगे। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चली जाऊं। तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसे सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं। और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो और जो बकरी चितकबरी और चित्ती वाली हो, और उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई न चित्ती वाली और न चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तब कहने के अनुसार हो। अतः उसने उसी दिन सब धारी वाले और चितकबरे बकरों और सब चित्ती वाली और चितकबरे बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियाँ लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छिल के उन्होंने धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों के सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठौतों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई, छड़ियों के समान गाभिन होकर। भेड़ बकरियों धारी वाले
चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जने। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठौतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब वह उन्हें उनके आगे नहीं रखता था। उससे निर्बल लाबान की हो रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया और उसके बहुत सी भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गदहे हो गए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे अंदर फिट एंड फिक्स करने के लिए तू इस्तेमाल कर। हमारी रचना ईश्वरीय होने दे, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको आने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 8 चैप्टर 26 वर्स से 40 वर्स, एस्तर 5 चैप्टर 6 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रेरितों के काम 8 अध्याय 26 वचन से 40 वचन, एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय 6 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में इन वचनों को, अध्यायों को पढ़ना चाहते हैं। ऐसे करने से हमारे अंदर से परमेश्वर अब हमारे पर्सनालिटी में से, हमारे व्यक्तिमत्व में से सुधार लाएगा और हमको जैसा परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है हम उसमें समर्पित रहेंगे। ज़रूरी नहीं सभी ने ऐसे ही करना है। आपके पास अगर कोई अलग योजना है इस वचन को पढ़ने के लिए, आप वैसे कर सकते हैं। निश्चित एक ही बात का करना है कि हमें परमेश्वर के आत्मा ने सहायता करनी है। निश्चित परमेश्वर के आत्मा के सहायता हमने लाभ उठाना है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर हमारी सहायता करो, हमें फिट एंड फिक्स करो। इन वचनों में हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।